Hello students, I am going to continue with the chapter complex number of 11 science. Exercise 1.1 question number 4 and example number 9. So the example is minus of root 5 plus 2 root of minus 4 plus in second bracket 1 minus root of minus 9 plus in bracket that is 2 plus 3i in second bracket 2 minus 3i. And the question is you have to reduce it in the form of a plus bi and find out the value of a and b. So here what we are going to do, that is this term is as it is. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आपको ये पता है कि रूट ऑफ माइनस 4 वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, दैट इज रूट 4 इंटू रूट ऑफ माइनस 1. सो दिस इज एक्चुअली द स्प्लिटिंग ऑफ दिस टर्म. सिर्फ एक का मैं दिखा रही हूँ, बाकी मैं सबको ऐसे डायरेक्टली लिखने वाली हूँ. So root of minus 4 we can write like this way, that is root 4 into root of minus 1. So यहाँ पे मैंने minus 1 का वैल्यू आपको पता है, that is nothing but the I. So I directly write it here, that is 2 root 4 and the value of this one is I. तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 माइनस ये स्प्लिट करके होगा root of minus sign and root of minus 1, that is nothing but I. Here the expansion, that is here we can see the formula, that is a plus b and a minus b, which we can write it like a square minus b square. So 2 square minus 3i bracket square. So root minus of root 5, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 2 जा 4i plus 1 minus the square root of root 9 is 3. So 3i, actually I write it as it is. And here the 2 square is 4 and minus 3 ka square is 9 and I square, that is having value minus 1. Now see, root of minus of root 5 plus 4i plus 1 minus the square root of this one is 3i plus 4 and minus of 1, that is minus plus 9. Now here we are going to solve this one. So I के जो terms है, that is 4 minus 3, that is 1i, and the remaining terms are 9 plus 1, that is 10 plus 4, that is 14, and this one is minus of root 5. So 14 minus root 5 plus I, and so comparing with the a plus bi, what we get? So a plus bi is equals to, so we are going to compare the real part as well as the imaginary part. So the real part is 14 minus root 5, so a is equals to 14 minus root 5 and b having the value that is 1. Now see the example number 10 from the same question, that is question number 4. 2 plus 3i and in second bracket 2 minus 3i. So it is very simple question, a plus b, a minus b structure we going to see here. So a square minus b square, so 2 square minus 3i square. So here we get that is 4 minus the square of 3, that is 9 and I square. So value of I square is minus 1, so minus plus, so 4 plus 9, that is 13. So here we get only the real part, so there is no any imaginary part, so we can write it like this way, that is 0i. And now comparing with the a plus bi, what we going to get, that is a plus bi is equals to 13 plus 0i. Now comparing with the real part and the imaginary part, so we get a is equals to 13 and b is equals to 0. Now see the next example, which is very important. Example number 11, that is 4i raised to 8 minus 3i raised to 9 plus 3 upon 3i raised to 11 minus 4i raised to 10 minus 2. So this type of questions are always asked in exam. So for that purpose you have to always remember, that is कोई भी नंबर आप लेते हो, that is for example i raised to 4 मैंने लिया है और 4 के मल्टीपल्स मैंने यहाँ पे लिखे, दैट इज 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 एंड 4 4 जार 16. अगर i रेस टू 4 का वैल्यू 1 है तो उसके मल्टीपल का भी वैल्यू सेम होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो i रेस टू 8 वी कैन राइट लाइक दिस वे, दैट इज i रेस टू 4 रेस टू 2, 4 2 जार 8 माइनस, अभी ये जो है हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज i रेस टू 8 इंटू आई. सो अगर बेस सेम होता है तो हम पावर्स की एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 8 प्लस 1, दैट इज 9 एंड 3 एज इट इज. सिमिलरली हियर आई रेस टू 8, 8 क्यों लिया है मैंने, 8 इज ये 8 जो है वो ये 11 के नज़दीक है और मुझे आई रेस टू 8 की वैल्यू पता है, दैट इज़ 1. तो आई रेस टू 8 इंटू आई क्यूब, 8 प्लस 3 दैट इज़ 11.
नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी 8 की वैल्यू मुझे पता है, तो i⁸ इंटू i⁻10 मैंने लिया है, सॉरी i⁻2 मैंने लिया है, सो 8 + 2 दैट इज 10 एंड -2 इज एज इट इज. सो यू नो द वैल्यू ऑफ i⁻4 दैट इज 1, सो 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे i⁸8 का जो वैल्यू रहता है मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके दिया, दैट इज 1. सो फॉर दिस वी कैन राइट इट 1 एंड दिस i इज एज इट इज एंड 3 ऑल्सो एज इट इज. नेक्स्ट वन, 3 इंटू 1, i⁸8 का वैल्यू 1 है, i³ -4 इंटू यहाँ पर भी 1 और i² का वैल्यू है -1 एंड दिस -2 एज इट इज. नाउ फॉर 1 स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 4 दैट इज 4 माइनस 3i + 3 अपॉन यहाँ पर जो i³ है वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, दैट इज i² इंटू i. सो 3i² इंटू i प्लस यहाँ पर माइनस माइनस +4 एंड -2, तो 7 - 3i एंड i² का जो वैल्यू है वो है -1. So 3 into -1 into I plus 4 -2 that is +2. So 7 - 3i as it is. Now we are going to write it the real part in front of this one. So 2 मैंने आगे लिखा है एंड यहाँ पे 3 इंटू -1 दैट इज़ -3i. तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है, लेकिन हमें उसको a + bi में कन्वर्ट करना है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो वी गोइंग टू टेक द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर टर्म. सो यहाँ पे मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 2 - 3i है, तो उसका जो कंजुगेट होगा वो है 2 + 3i अपॉन 2 + 3i. हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. सो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे अगेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ a + b एंड a - b. सो द आंसर इज a² - b². सो 2 स्क्वायर - 3i². तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे. तो 7 2s are 14, आफ्टर दैट 7 3s are 21i -6i एंड माइनस 9i². तो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा है और डिनोमिनेटर में है 4 - 9i². तो ये है 14 एज इट इज़, 21 - 6 दैट इज़ 15i -9 एंड द वैल्यू ऑफ i² इज़ -1. सो 4 - 9 इंटू -1. तो ये जो डिनोमिनेटर है वो मैंने ऐसे ही लिखा है, दैट इज़ 4 - 9. i² का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, दैट इज़ -1. नाउ सी द 14 + 15i देन -+ 9 अपॉन 4 + 9. सो 23 + 15i अपॉन 9 + 4 दैट इज़ 13. Now we are going to separate the denominator. So 23 upon 13 plus 15 upon 13i, and while comparing with a plus bi, so the real part is compared with this one. So the value of a is 23 upon 13 and b is imaginary number, so 15 upon 13. So this is the answer of this one. Now see, we are going to see the next question, that is question number 5, in which we are going to see the question that is show that -1 + √3i ब्रैकेट क्यूब इज़ अ रियल नंबर. अभी देख सकते हैं कि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमें अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो ये रियल नंबर है, वो हमें प्रूव करके दिखाना है. तो इसके लिए हमने इसी नंबर को यहाँ पे लिया है, दैट इज़ -1 + √3i ब्रैकेट क्यूब. तो ये सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ a + b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³. सो विच यू लर्न इन आई थिंक 8th स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a³ मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3a² एंड b एज इट इज़ प्लस 3 इंटू a एज इट इज़ एंड b का स्क्वायर एंड लास्ट में b का क्यूब. तो आई कंसिडर द फर्स्ट वन इज a एंड दिस वन इज अ b. नाउ सी द -1 का क्यूब इट इज़ -1. यहाँ पे हम देख सकते हैं -1 का स्क्वायर दैट इज़ +1 इंटू 3 दैट इज़ 3 एज इट इज़ एंड √3i एज इट इज़. नाउ 3 इंटू -1 दैट इज़ -3 इंटू √3 का स्क्वायर है 3 एंड i² इज़ -1, सो 3 इंटू -1 दैट इज़ -3. √3 का क्यूब होगा 3√3 एंड i³ इज़ एज इट इज़. सो आफ्टर दैट -1 3√3i, यहाँ पे माइनस प्लस होगा 9 प्लस 3√3, ये i³ हम i² इंटू i भी लिख सकते हैं, इन विच द वैल्यू ऑफ i² इज़ -1. सो -1 प्लस 3√3i प्लस 9 - 3√3
आई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने पुट किया, दैट इज़ -1, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा एंड दिस आई इज एज इट इज़. So both the terms are similar with the different signs, so these terms will get cancelled. And so my answer is +9 minus 1, that is 8, which is nothing but the real number. जो हमें प्रूव करना था कि वो हमें ये शो करना है कि ये जो नंबर है वो रियल नंबर है. एंड सो माई आंसर इज 8, सो इट्स अ रियल नंबर. Now see the next question, that is question number 6. So 3 plus 2 upon I, evaluate, मतलब हमें इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है. I raised to 6 minus I raised to 7 and 1 plus I raised to 11. तो ये पहला वाला ब्रैकेट मैंने ऐसे ही लिखा है. मैंने अभी आपको बताया था कि हमें ये जो 4 वैल्यूज़ है वो हमें ध्यान में ही रखना है हर एक एग्जाम्पल में. दैट इज़ दैट इज़ I का जो वैल्यू है वो है √(-1), I स्क्वेयर इज़ -1, I क्यूब इज़ -I एंड I4 इज़ 1. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, I⁻⁶ को मैं स्प्लिट करूँगी I⁴ इंटू आई स्क्वेयर, दैट इज़ 4 + 2 दैट इज़ 6. सिमिलरली अब मुझे I⁴ का वैल्यू पता है, सो मैं I⁴ ले रही हूँ. I⁴ इंटू आई क्यूब, सो 4 + 3 दैट इज़ 7. आफ्टर दैट दिस 1 इज़ एज इट इज़. अगेन अभी यहाँ पे हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये तो बहुत कम नंबर है रिलेटेड टू 11. तो 11 से जो नज़दीक नंबर है वो है 8. So I am going to take it 8, that is I⁸ into I cube, 8 + 3 that is 11. तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट हमने ऐसे ही रखा है. अभी इसका जो वैल्यू है वो है 1 एंड आई स्क्वेयर इज़ -1 माइनस अगेन I⁴ इज़ 1 एंड आई क्यूब. अभी मैंने आपको बताया था कि द वैल्यू ऑफ आई क्यूब इज़ -I, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वो पुट किया है -I. 1 एज इट इज़, इसका वैल्यू है 1 एंड आई क्यूब इज़ अगेन -I. Now just we going to solve it. This bracket is also as it is. Now -1 plus minus plus I and 1 यहाँ पे -I. So again this bracket is as it is and now we are going to multiply. तो ये -1 इन दोनों को multiply करेगा. So -1 into 1 -1 minus plus I, यहाँ पे plus I and minus I square. Again this bracket as it is, -1 I plus I that is 2I and minus of -1. तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ -1 plus 2I and this minus plus 1. So -1 plus 1 cancel. So this bracket outside the 2I. तो 2I से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. So 3 2s are 6I. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये I कैंसिल होगा. सो यहाँ पे 2 2s are 4 we get. Just I am going to write down the real term first and after that imaginary term, that is 4 plus 6I. And actually this is the answer of this example, 4 plus 6I. After that see the question number 7. In question number 7 we have to evaluate, मतलब यहाँ पर भी हमें जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है. एंड इसके लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है, दैट इज़ we have to always keep in mind the value of I is √(-1), I square is -1, I cube is -I and I⁴ is 1. तो ये वैल्यू लेके हम ये सॉल्व करने वाले हैं. तो I⁻35, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि I⁴ जो है उसका वैल्यू रहता है 1. ठीक है, तो इस 4 से मैंने क्या किया, 35 को डिवाइड किया है. So I am just taking the number, that is 4 and 35. तो 4 8s are 32. yes, so 32 जो नंबर है इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये जो 35 है तो मैंने उसको ऐसे स्प्लिट अप किया. यहाँ पे आंसर आता है 3. तो स्प्लिट अप मैंने कैसे किया, 32 into 3. 32 का 32 + 3 करते हैं तो हमें 35 मिल जाता है. तो ये I⁻32 हम कैसे लिख सकते हैं, तो I⁻32 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, दैट इज़ I⁴8. सो 8 4s are 32. यहाँ पे हमने आंसर फाइंड आउट किया था. एंड दिस I इज़ एज इट इज़ 32 into I cube is there. And now the value of I⁻4 is 1. So 1 raised to anything, the answer is 1. The I cube, the value of I cube is nothing but minus of I, and taking the product we get -I. So this is the answer.
सो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, तो इसके साथ हम कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज आई रेज़ टू 888। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑलवेज टेक द नंबर दैट इज आई रेज़ टू 4। 4 से इसको डिवाइड करो, सो विल गेट 2 2 2। तो 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8। पहले आई रेज़ टू 4 को फाइंड आउट करो और 4 से इसको डिवाइड करो, तो आपको ये आपका नंबर मिल जाता है। And you know that is the value of I raised to 4 is 1, so 1 raised to anything, the answer is 1. Next one, I raised to 93. So 93 को हम कैसे लिख सकते हैं? 93 4 से डिवाइड करने वाला जो नंबर है, अगर हम 93 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नहीं आता है। तो इसके नज़दीक का जो नंबर है वो है 92। 92 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है, दैट इज़ 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार, सो 23 आंसर हमें मिल जाता है। तो मैंने क्या किया है, आई रेज़ टू 4 रेज़ टू 23, यहाँ का 23 जो आया है, तो यहाँ पे मुझे मिला 92, लेकिन एग्जांपल में 93, तो 1 आई यहाँ पे बचा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 92 इंटू आई, दैट इज़ 93। सो द वैल्यू ऑफ आई रेज़ टू 4 इज़ 1, सो 1 रेज़ टू 23 इंटू आई। Anything raised to 1 is answer having 1, so 1 into I, the answer is I. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि I raised to 4 आपको प्रॉपरली पहले लेना है, और 4 से डिवाइड होने वाला इसमें का जो नंबर है वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं, और रिमेनिंग नंबर्स हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर भी देखो 116 है, I raised to 4 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 4 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 29, नो एनी रिमाइंडर इज देयर, सो directly we can put the value, that is I raised to 4 is 1 and 1 raised to anything, the answer is 1. Again here same, that is 403 से, तो 403 तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसका नज़दीक का जो नंबर है जो 4 डिवाइड कर सकता है वो है 400। तो मैंने यहाँ पे I raised to 4 raised to 100 लिखा है, that is इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 400, सो द रिमेनिंग्स आर 3, सो I क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 1 रेज़ टू 100 एंड द वैल्यू ऑफ आई क्यूब इज़ नथिंग बट माइनस आई, तो इसका आंसर है 1 इंटू दिस 1, सो आंसर इज माइनस आई। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6, दैट इज़ 1 अपॉन आई रेज़ टू 58। तो 1 अपॉन आई रेज़ टू 4 तो मैंने ले लिया, एंड 4 से मैंने इसको अगर डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलता है, सो पहले आप देख सकते हैं, दैट इज़ 58 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 1, एंड 4 4 ज़ार, दैट इज़ 16, द रिमाइंडर इज़ 2। तो यहाँ पे मुझे 40 मिलता है एंड रिमाइंडर 2 बाकी रहता है, मतलब यहाँ का जो मुझे नंबर मिल रहा है वो क्या है 56। जो रिमाइंडर बाकी रहता है वो पहले लिख दो यहाँ पे आई स्क्वायर, एंड इस 2 को इससे सब्सट्रैक्ट करो, 58 माइनस 2 दैट इज़ 56। तो 56 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 14 4 ज़ा 56, सो 14 यहाँ पे मैंने रेज़ टू डाला है। तो 1 अपॉन 1 रेज़ टू 14 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, सो 1 अपॉन -1, सो आंसर इज -1। नाउ सी आई रेज़ टू माइनस 888, तो ये वाला एग्जाम्पल हमने पहले भी सॉल्व किया था सेकेंड में, यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पे अलग सा क्या है, दैट इज़ माइनस साइन इज देयर। तो कुछ नहीं, हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो टेकिंग रेसिप्रोकल, सो 1 अपॉन आई रेज़ टू 888, तो 1 अपॉन आई रेज़ टू 4 रेज़ टू 222, सो 1 अपॉन 1 रेज़ टू 222, सो द आंसर इज 1। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 8, आई रेज़ टू 30, आई रेज़ टू 40, आई रेज़ टू 50 एंड आई रेज़ टू 60। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 4 से डिवाइड होने वाला यहाँ इसका नज़दीक का नंबर हम ढूंढते हैं। 4 से हम 30 को तो नहीं डिवाइड कर सकते, तो उसके कम वाला नंबर दैट इज़ 29 नहीं 28, सो 28 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 28 मैंने ले लिया, एंड द रिमेनिंग 2 टर्म्स दैट इज़ आई स्क्वायर, दैट इज़ 28 प्लस 2 वी गेट हियर 30। सिमिलरली हियर आई रेज़ टू 4 रेज़ टू 10, दैट इज़ 4 10s are 40। नेक्स्ट वन यहाँ पे 40 से वो डिवाइड होता है, तो आई रेज़ टू 48 इंटू आई स्क्वायर, यहाँ पर आई रेज़ टू 4 रेज़ टू 15, 15 4s are 60, एंड नाउ यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो आई रेज़ टू 4 रेज़ टू 7,
4 7s are 28, and here the value of I square is -1. यहाँ पे 1 raised to 10, यहाँ पे 4 raised to 12, and the value of I square is -1. Again 1 raised to 15, तो 1 raised to 7 -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 raised to 12, यहाँ पे -1 and 1. So finally we get here, that is 1 raised to 7 is 1 and this -1, so answer is -1 plus 1, यहाँ पे -1 and the last one is +1. So all terms get cancelled and so the answer is 0. Now see the question number 8. Show that 1 plus I raised to 10, I raised to 20, I raised to 30 is a real number. तो पहले भी हमने इस टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व किया है. रियल नंबर मतलब ये सब सॉल्व करके हमें कोई भी रियल नंबर यहाँ पे मिल जाता है. तो 1 मैंने ऐसे ही लिखा. I raised to 10 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ I raised to 10 इंटू I raised to 2. 20 को हम लिखेंगे I raised to 4 raised to 5. 30 को हम लिख सकते हैं, दैट इज़ I raised to 28 इंटू I square. So 1 is as it is. 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ I raised to 4 square. The value of I square is -1. And यहाँ पे I raised to 4, that is 1 raised to 5. Next one I raised to 4 raised to 7 and the value of I square is -1. So 1 plus 1, the value of I raised to 4 is 1 and 1 square is 1 and here is -1. यहाँ पे भी 1 raised to 5, that is 1. यहाँ पर भी I raised to 4 का वैल्यू है 1 raised to 7 and this -1. And finally we get here 1, -1, +1 and -1. Here also all terms get cancelled and so we get here 0, which is a real number, and hence we prove that it is a real number. So this is all about the question number 8. Up to question number 8 we solved here. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.